Hi everyone, my new course and new batch on Unacademy Plus has already started for all the aspirants of sociology irrespective of what exam you are preparing for. So do not delay anymore. Subscribe now to Unacademy Plus NTA Net category with the referral code Antarachak. Also do not forget to subscribe to my channel, like and share all my videos and help all your friends. Hi everyone, welcome to Antara Squad. So many of you have been requesting me for days to upload a video on CUET PG exams for 2022 and a lot of you are confused about whether हमें JNUE अलग से देना है या BHU के exams देना है etc. So in this video, I Antara Chakrabarti, who is your sociology educator, I'm going to clarify all these doubts that you people have. Hence, I request all of you to watch the full video because अगर आप लोग full video नहीं देखेंगे तो फिर आप लोगों के बहुत सारे doubts आएंगे जो clear करना बहुत ज़रूरी है. So I will take you people through this video part by part, and I will also upload another video after this regarding the syllabus and what all you people need to read etc. for the exams. So let us get started with the video. The first step that you people need to do is to go to the CUET, that is CUET or CUET, however you pronounce, the main website that is by NTA. जितने भी websites के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में, उन सब के links मैं description box पे दे दूँगी so that you people do not have to search it yourself. So if you just type cuetnta.nic.in, you will get the website जिसमें जो applications के link शुरू हो गए हैं वो सारे applications यहाँ पे आपको मिल सकता है. But also remember guys, this PG exam is only for masters, so a lot of students are confused whether PG में PhD भी included है कि नहीं. Not as of now, this is just for the masters. So let us look at what else do we find in this website. अगर आप information पोर्शन पे जाओगे, एक आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगी, दूसरी सिलेबस मिलेगी. सो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो थ्रू, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. रेस्ट इफ यू पीपल हैव ऑलरेडी रेड द इंस्ट्रक्शंस, यू पीपल कैन डायरेक्टली गो एंड स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म. सो लेट मी टेक यू पीपल in detail through the information bulletin because it's very very important. एंड मैं आप लोगों को पेज बाय पेज बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इसमें नोट डाउन करना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसा होगा एग्जाम पैटर्न एटसेट्रा. ओनली देन यू कैन आस्क मी डाउट्स लेटर ऑन इन केस यू पीपल हैव एनी. सो सबसे पहले, ऑल्दो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस पे, बट दे हैव गिवन अस सम पिक्चर्स लाइक दैट ऑफ Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, Banaras Hindu University, and very very importantly, which many students are confused, that is Jawaharlal Nehru University. So we are going to look at all these criteria etc. but let us start with the basics. सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पेज नंबर्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप नहीं स्किप कर सकते. अगर आप PDF खोलेंगे तो उसके पेज नंबर 8 में आपको जाना है, जहाँ पे they have given us all the important information and dates at a glance. So जो फॉर्म है उसका फॉर्म का जो वैलिडिटी रहेगा फिलअप करने का, वो रहेगा 19 मई से 18 जून 5 बजे तक. So please note it down, fill your forms before the deadline so that बाद में जाके कोई रश या हरी आप लोगों को ना करना पड़े. Now this is a very important part that you people need to remember. यहाँ पे ये मेंशन है कि स्टूडेंट जो है एक साथ 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका फीस ये लेफ्ट हैंड साइड में है 800, 600, 550, 500 फॉर डिफरेंट कैटेगरीज. लेकिन मान लीजिए आपको 3 से ज़्यादा पेपर के लिए या फिर ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको पर पेपर का 200 पड़ेगा. सो लेट्स अज्यूम अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपने 3 पेपर्स के लिए ऑप्ट किया है तो आपको 800 फिलअप करना पड़ेगा. इफ यू फिल अप वन मोर देन यू नीड टू ऐड 200 विद दैट. और जो राइट हैंड साइड में है दैट इज फॉर foreigners, so we do not really have to go through that. I hope this portion is clear because they also mention this in the next line as well. Applicant can apply for 3 test papers by paying application fee as mentioned. अगर आपको और एक पेपर के लिए करना है या फिर जितने भी पेपर के लिए करना है तो पर पेपर 200. इसके अलावा जो एग्जाम्स होंगे वो 2 टाइम में होंगे, जैसे UGC नेट के होते हैं. कुछ एग्जाम्स 10 बजे से 12 बजे होंगे, टोटल टाइम इज 2 आवर्स, एंड कुछ एग्जाम्स 3 बजे से लेके 5 बजे तक. नाउ द नेक्स्ट पेज नंबर that you people need to go through is पेज नंबर 15. हम देख लेते हैं पेज नंबर 15 में क्या है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज यहाँ पे इन लोगों ने एग्जामिनेशन का स्कीम समझाया है.
सबसे पहले इंपॉर्टेंटली यू पीपल नीड टू रिमेंबर कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू बी रिटन या फिर OMR शीट इस तरीके का नहीं है. आपको सेंटर जाना पड़ेगा जहां पे कंप्यूटर्स होंगे और जैसे बाकी एग्जाम्स होते हैं वैसे ही आपको देना पड़ेगा. हाउएवर दिस इज वेरी नाइस बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यूज्ड टू कंप्लेन अंटिल लास्ट ईयर कि पेपर्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आती है एंड दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिलिंग अप और सॉल्विंग द पेपर. सो इस बार CUET के PG पेपर्स दोनों इंग्लिश और हिंदी में होंगे. Yes, which means कि while filling up the form आप अपना जो प्रायोरिटी है, आपका जो चॉइस है वो आप दे सकते हो, बट एट एनी मोमेंट एग्जाम हॉल में अगर आपको वो क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आ रही है, यू वांट टू चेंज इट टू इंग्लिश, यू कैन डू सो. या फिर इफ यू वांट टू चेंज इट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, दैट ऑल्सो यू कैन डू. यस. Now let's come to the part where many of the students were in doubt कि पेपर का पैटर्न क्या होगा. Now let me tell you, जो पेपर का पैटर्न है वो इस तरीके का है. दैट इज टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 2 आवर्स, जहां पे पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी. आई होप यू पीपल आर एबल टू सी इट. पार्ट ए में कुछ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस होंगे, वर्बल एबिलिटी होंगी, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, GK, कुछ मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर कुछ बेसिक एनालिटिकल स्किल्स जो कि 25 मार्क्स के होंगे. बाकी 75 मार्क्स या फिर 75 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम द डोमेन. दैट इज अगर आप लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 75 क्वेश्चंस सोशियोलॉजी के सॉल्व करने पड़ेंगे और 25 क्वेश्चंस ये जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है इन सब के हिसाब से आएगा. नाउ दोज ऑफ यू हु आर कंफ्यूज्ड ये नंबर्स क्या है, दीज आर नथिंग बट सब्जेक्ट कोड्स. अगर आप लोगों को याद नहीं होता, रिमेंबर PGQ P15 यानी कि जो 15 नंबर का पेपर है वो सोशियोलॉजी का है, विच आई विल एनीवे टेल यू पीपल. अगर आप 18 यानी कि 18 पेज नंबर में आप लोग जाते हैं, they have given us all the codes along with the subjects. So you can see PGQ P15 sociology is for MA. So ये नंबर आप लोगों को याद रखना है because this you will keep seeing a lot of time. Next important part we move to page number 25 जहाँ पे they have mentioned us कि हम लोग choice of cities यानी कि जो centers हैं कहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना है वो कैसे सिलेक्ट करना है. You can select 4 cities of your choice. जो भी आपके आसपास के cities होते हैं जहाँ से आप एग्जाम्स देने में कोई मुश्किल नहीं होगा, you can select such 4 cities. और बाद में जब एडमिट कार्ड्स आएंगे according to the availability etc. वो आपको इन्हीं चारों में से कोई प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट वी मूव टू पेज नंबर 32 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑन द एग्जाम पैटर्न और NTA के स्कोर्स कैसे यूज होंगे. सो प्लीज सी इट वेरी केयरफुली गाइज. जो भी स्कोर आपको इस CUET PG 2022 में मिलेगा वो सिर्फ इसी साल में आप यूज कर सकते हैं. जस्ट लाइक एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम वो आप बाद में यूज नहीं कर सकते. Scores and candidate data should be shared with the university where she has applied. इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि स्कोर कार्ड में 2 पार्ट्स होते हैं which I already said. Section 1 is the general part जिसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. Then we have section 2 which is sociology or any specific subject. Now ये यूनिवर्सिटी पे है. Read number D very carefully. This is on the university whether वो सिर्फ section 1 या section 2 दोनों को जोड़ के consider करेगा total merit students को admission देने के लिए, or they will only consider section 2. So this is up to the university. We don't know. That's why I keep telling students please do not take the first part lightly. अगर आप दोनों parts में equally अच्छे से score करोगे then your getting through chances are also very high. Yes? All right. बाकी क्वेश्चंस MCQ टाइप के ही होंगे etc. Now a lot of students have also asked me whether in papers में negative marking होंगे कि नहीं. Now this is something which is a very important part that you people need to remember कि यहाँ के जो question patterns है वो किस तरीके के होंगे. आई विल शो यू, बट यू हैव टू रिमेंबर कि इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड होगा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में. बट एनीवे Now this is a very important part. We move to page number 78 जहाँ पे सारे central universities के list हैं. All those who are participating in the CUET pattern this time ये सारे के सारे central universities के list हैं. So आप लोग देख सकते हो जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहले अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करता था, but now they have also participated. इसके अलावा lot of other universities like Jawaharlal Nehru University जिनकी खुद की एग्जाम्स होती थी, they have also started
ऑप्टिंग फॉर द CUET। इसी के साथ और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो अपना अपना खुद का इंडिविजुअल एग्जाम्स करते थे, बट नाउ दे हैव पार्टिसिपेटेड इन CUET। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये चीज मैं बार बार बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स को। ये मत समझिए, डोंट थिंक दैट दिस टाइम द एग्जाम पैटर्न इज CUET, देयरफॉर सारे यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। नो, दे आर नॉट। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द सब्जेक्ट एंड द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग टू आर डिफरेंट। सो मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं एंड दे वांट टू स्टडी इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, पर आपको पेज नंबर 78 से शुरू होता है सारे सब्जेक्ट्स और सारे यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी टेल यू, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सोशियोलॉजी का ही सिर्फ एलिजिबिलिटी देखना पड़े तो आपको 111 पेज नंबर में जाना है, जहां पे यू विल सी सोशियोलॉजी MA सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, तो इनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसी तरीके से इफ यू वांट मी टू गो टू लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यहाँ पे आपको बैचलर्स में 50% मार्क्स चाहिए, एंड कोई भी सोशियोलॉजी से अलाइड सब्जेक्ट्स या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स भी चलेगा। ओके, सो दीज आर लाइक डिफरेंट रूल्स। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ध्यान से पढ़ के जाए उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है। नाउ इफ यू वांट मी टू कम डाउन टू लेट्स से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सोशियोलॉजी क्राइटेरिया उनका कहीं ना कहीं सेम ही है जिस तरीके से पहले होता था। आप किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री ला सकते हो, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज होते हैं उनको 10% रिलैक्सेशन मिल सकता है, एटसेट्रा। सो इट्स काइंड ऑफ द सेम, दे हैव नॉट रियली चेंज्ड। बट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज BA ऑनर्स, BA BSc अंडर 10-3 pattern securing minimum of 50% marks, including all subjects studied except those where only pass marks are required. Now, जिन स्टूडेंट्स ने पहले BHU के एग्जाम्स दिए थे उनको पता होगा दैट पहले BHU में सिर्फ सोशियोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते थे, बट नाउ दैट इज नॉट द केस। BHU हैज मेंशन्ड दैट in all subjects and they have not really mentioned कि आपका exactly sociology में ही honors चाहिए होगा। Yes, so just like that, these are some important portions. So this is something that I was telling you people before as well. The marking scheme is very very important and you people need to note it. 100 questions होंगे जिनमें से हर एक question के marks 4 marks होंगे. If you people give correct response to the answer, then you get 4 marks. For each incorrect response, 1 mark will be deducted from the second score. यस, सो अगर आपने मान लीजिए 2 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, आपको 8 मार्क्स आए, लेकिन अगर तीसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपके 8 - 1 हो जाएगा। यस, और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया या फिर अटेम्प्ट किए बिना ही छोड़ दिया तो आपको वहां पे 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, now these are something important parts that I felt very important to note. This is part 1 of this CUET video. Soon after this video, I'm going to upload part 2 with the syllabus and reading materials or any other doubts that you post in this current video. So stay tuned and please अगर कोई भी doubt है आप लोग इसी पे लिखिए so that I can address this query in the next video. Okay? Thank you so much and see you people very soon.